মাতৃমূর্তির সামনে প্রবেশ করছেন। শত ফুল বিকশিত হোক, মনে মনে এই আশা। আমাদের সকলের মধ্যে যদি কোনো কালিমা থেকে থাকে, আজকের এই মহতী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে আমরা মায়ের মূর্তির সামনে শপথ করি, আমাদের মন থেকে সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক। আমরা একটা আনন্দের পরিবেশে সবাই উপস্থিত হই, আমরা একটা ভালো লাগার পরিবেশে উপস্থিত হব। এই সময়ের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। আনন্দমুখর এমন উজ্জ্বল একটি সন্ধ্যায় দ্য বস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। তিনি এই মুহূর্তে মঞ্চে এসে উপস্থিত হচ্ছেন এবং মঞ্চে তার উপস্থিতি আমাদের সকলের কাছে প্রার্থনার বিষয়। মাতৃমূর্তির সামনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন তিনি। তার সঙ্গে রয়েছেন দ্য বস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের শ্রদ্ধেয় সভাপতি বিধায়ক শ্রী সীতানাথ ঘোষ মহোদয়। আমরা দিদিকে মঞ্চে পেয়েছি আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনায় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দ্য বস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জগদ্ধাত্রী। ওম শহনা ভবতু শহনো ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহি তেজস্বিনাবধীতমস্তু मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णामृतं पूर्णामृतं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। বস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঢাকির বাদ্যিতে সানাইয়ের মূর্ছনায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মা জগদ্ধাত্রীর আবরণ উন্মোচন করে উদ্বোধন করলেন প্রদীপ জ্বালিয়ে। এখন যারা ভার্চুয়ালের জন্য প্রস্তুত আছেন তাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা ভার্চুয়ালের জন্য রেডি হয়ে যান। দিদি প্রথমেই ভার্চুয়ালের মাধ্যমে যে 6টা জগদ্ধাত্রী পুজো আছে সেটা দিদি উদ্বোধন, তারপরে আমরা পরের অনুষ্ঠান শুরু করব। আইএনসি রেডি আছে? রেডি? আমরা অ্যানাউন্স করি। আমি অ্যানাউন্স করছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি এখন প্রথম উদ্বোধন করছি ভার্চুয়ালি ব্রাহ্মণপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি, যেখানে ইন্দ্রনীল সেন, মুক্তা আরিয়া, অমিত জাভালগির, রাম চক্রবর্তী সহ ক্লাবের সকলে উপস্থিত আছে। মা জগদ্ধাত্রীর কাছে অনেক প্রণাম জানাই। আপনাদের চন্দননগরের সব পুজো কমিটিকে প্রণাম জানাই, কারণ আপনারা চন্দননগর শুধু চন্দনের সাথে নয়, আলোর সাথে মিশে আছেন। অর্থাৎ চন্দননগর আলো ভাব আমার সবচেয়ে বিখ্যাত। আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমার নেক্সট পুজো কমিটি উদ্বোধন হবে দৈবাকপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এখানে উপস্থিত আছেন অদিতি চৌধুরী,
হিরণময় চ্যাটার্জি, শ্রীমতী সবিতা দাস সহ সকলে উপস্থিত আছেন। খুব ভালোভাবে পুজো কাটান। মা জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম জানিয়ে বলি সুন্দর করে করুন। এবার আমি 3 নম্বর করব বড় সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি, শ্রী কৌশিক ভূষণ, অনিমেষ ব্যানার্জি সহ চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির অনেকে উপস্থিত আছেন। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপর আমি করব উর্দিবাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এখানে উপস্থিত আছেন শুভজিৎ শাহ এমএমসি, শামাদ আলী, বড় কমিটির চেয়ারম্যান। আপনাদের অনেক অভিনন্দন। অনেকেই উপস্থিত আছেন, বয়োজ্যেষ্ঠরা, ছোটরা। চন্দননগরকে আমার অনেক অভিনন্দন। আমি সব পুজো কমিটিকে আমার অনেক অনেক প্রণাম এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এরপর আমি করব বারাসাত ব্যানার্জি পাড়া মধ্যাঞ্চল সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি, শ্রী অমিতেন্দু পাল, শ্রী শোভন মুখার্জি সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন। বারাসাত এমনিতেই কালী পুজোর জন্য বিখ্যাত, জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য আপনারা খুব বিখ্যাত। এরপর আমি করব দিনে মাগডাঙ্গা তালপুকুর ধর সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এখানে শ্রী সোমা রাও চৌধুরী, কাউন্সিলর এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সহ সকলেই উপস্থিত আছেন। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক অভিনন্দন, অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের সাথে সাথে কালী পুজো হয়ে গেল। আমি কালী পুজোর সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, দীপাবলিরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, ছট পুজোরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, জগদ্ধাত্রী পুজোরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, দীপাবলিরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, দশেরারও অভিনন্দন জানাচ্ছি, নবরাত্রিরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের জেলার সকল পুজো কমিটিকে, পশ্চিমবাংলার সকল পুজো কমিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার আমি রিকোয়েস্ট করব পুজো কমিটিকে তাদের পারফর্ম করবার জন্য। এবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ আগরওয়াল। আপনারা দেখলেন একটু আগেই জগদ্ধাত্রী পুজোর 6টি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমাদেরও পোস্তাবাজার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের 50 বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তি উৎসব। মঞ্চে আছেন আমাদের সম্মানীয় সংসদ, মঞ্চে আছেন আমাদের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী, আমাদের ঘরের মেয়ে শশী পাঁজা উপস্থিত আছেন, আমাদের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু উপস্থিত আছেন, আমাদের ল মিনিস্টার উপস্থিত আছেন, আমাদের সিপি সাহেব উপস্থিত আছেন, এখানে আমাদের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত আছেন, আমাদের মহানাগরিক উপস্থিত আছেন। আমি বেচারাম মান্না আমাদের কৃষি বিপণন মন্ত্রী সামনে বসে আছেন। আমি একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব এবং আমার ভলেন্টিয়ারদের বলবো প্রত্যেকে বরণ করে নেবার জন্য। বলছি তো না, সবাইকে তো করবে, সবাইকে করবে। আমি প্রথমেই পোস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে আছেন এবং আমাদের যারা মাননীয় এমআইসিরা যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে, এবং আমার মঞ্চের সামনে কাউন্সিলর সহ বিশিষ্ট জনেরা যাদের আজকে মঞ্চে সংকুলন না হবার জন্য আমরা হয়তো মঞ্চে জায়গা দিতে পারিনি, মার্জনা করবেন। এবং আমার মজদুর ভাইরা এবং সাধারণ সমস্ত মানুষরা যারা পোস্তাবাজারের সঙ্গে আপনারা সম্পৃক্ত, তাদের প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলবো যে আমরা যদি আজকে দিদির আশীর্বাদ না পেতাম, দিদির হস্তক্ষেপ না পেতাম,
তাহলে হয়তো আমরা এই 50 বছরের পূর্তির উৎসবটা পোস্তা বাজারে আজকে দাঁড়িয়ে আমরা করতে পারতাম না। তার কারণ 2018 সাল থেকে এই ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের যে আগ্রাসী মনোভাব, এতদিন হয়তো আমাদের বাজারটা উৎখাত হয়ে যেত। দিদি আমাদের হস্তক্ষেপ করে সরকার এই জায়গাটাকে গ্রহণ করেছেন। তারপরেও তারা এখনও নানা রকমভাবে দিদি ইভিকশন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোর্টে যাচ্ছি, স্টে অর্ডার নিচ্ছি। তারা বারবার চেষ্টা করছে কোনো জায়গায় দেয়াল তুলে দিয়ে যে জায়গাটা আমাদের প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কখনো বা তারা বিভিন্ন পার্কিং লটের টেন্ডার করে চালু করে দিচ্ছে, দিয়ে তারা দখল করতে চাইছে। কিন্তু আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। আপনার হস্তক্ষেপে, আপনার আশীর্বাদে আমরা পোস্তা বাজার এখনও বেঁচে আছি। দিদি, আপনার জন্যেই পোস্তা বাজারের সঙ্গে প্রায় লাখো লাখো মানুষের রুটি রোজগার জড়িত। মা জগদ্ধাত্রী যেমন জগৎকে ধারণ করেন, আপনার হস্তক্ষেপে সেইভাবে আমরা পোস্তা বাজারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আপনি। তাই আপনি পোস্তা বাজারের সমস্ত মানুষের কাছে আপনি আমাদের জগদ্ধাত্রী। আপনি আমাদের অন্যের সংস্থান করে দিয়েছেন। আপনি যদি হস্তক্ষেপ না করতেন, আমরা হয়তো আজকে আমাদের পোস্তা বাজার উঠে যেত। আপনি আমাদের এই লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা পোস্তা বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের প্রত্যেকের আপনি অন্ন সংস্কার করে দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের কাছে মা অন্নপূর্ণা। আমরা মা জগদ্ধাত্রীর কাছে আপনার দীর্ঘ জীবন, দীর্ঘ সুস্থতা কামনা করি। আমি মনে করি দিদি যদি সুস্থ থাকে, বাংলা সুস্থ থাকবে। আমি মনে করি দিদি যদি সুস্থ থাকে, বাংলার মানুষ সুস্থ থাকবে। তাই আসুন আমরা মা জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করি, দিদি সুস্থ থাকুক, দিদি সবল থাকুক, এইভাবেই বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটে তুলুক। এই বলে আপনাদের প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। এরপরে আপনাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন, তারপরেই দিদি বলবেন। এরপরে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ আগরওয়াল। দিদি, আগে রিকোয়েস্ট করি, আমার একটা মেম্বার দুটা বই লিখেছে, ও রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদিকে দিয়ে দিন। একটা আছে জিন্দগি ফির না মিলেগি দুবারা, और একটা বাচ্চাদের উপরে প্রদূষণের উপরে আছে। नमस्कार। दी पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 50वीं श्री श्री जगदात्री पूजा का पुनीत अवसर पर हम सब व्यापारी वृंद ममता मई आदरणीय मुख्यमंत्री बनर्जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। राज्य की व्यवस्थाओं को संभालने की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय ममता दीदी ने सदैव की भांति इस पुनीत अवसर पर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, पूजा उद्बोधन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ की जितनी भी ऑडियंस है, एक बार खड़े होकर करतोल ध्वनि से ताली बजाइए। मंच पे विराजमान हमारे अति प्रिय जनप्रिय सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी, हमारे केएमसी के मेयर एवं नगर विकास मंत्री जनाब फिराद हाकिम साहब, श्रम एवं कानून मंत्री आदरणीय श्री मलक घटक जी, सहकारिता मंत्री किसी कारणवश शायद नहीं आ पाए, उद्योग और वाणिज्य के साथ महिला बाल कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती शशि पांजा, दमकल एवं आपात सेवा मंत्री श्री सुजीत बोस, कृषि एवं विपणन मंत्री श्री बेचाराम जी मन्ना, विधायक एवं डिप्टी मेयर वो भी किसी कारण से शायद नहीं आ पाए, विधायक श्रीमती नैना बंदोपाध्याय, चेयर बोरो पर्सन की आई हैं कि पता नहीं, चेयर बोरो पर्सन 4 की केएमसी की श्रीमती साधना बोस आई हैं। वाह, नमस्कार। वार्ड नंबर 21 की पार्षद श्री मीरा हाजरा जी का हम सब व्यापारी वृंद और स्थानीय नागरिक वृंद हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राज्य के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर पैनी नज़र और मजबूत पकड़ रखने वाले धाकड़ पुलिस अधिकारी की छवि बना चुके श्री पुलिस कमिश्नर श्री विनीत कुमार जी गोयल कि हम सब तहे दिल से आभारी हैं और उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूजा का उद्बोधन करके हम सब का उत्साहवर्धन किया। हम माँ जगदात्री से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, ममता दीदी निरंतर सफलता के उच्चतर सोपान की ओर अग्रसर हो। पोस्ता में कानून व्यवस्था की मुस्तैदी से पालन
के कारण यहाँ के व्यवसायी बासिंदों की जिंदगी भी आसान हो गई है। इसलिए हम संवेद स्वर में दीदी का आभार व्यक्त करते हैं। ये सब इनके आशीर्वाद से ही हम लोग के यहाँ संभव हो चुका। जो ये पोस्ता हर समय विपत्ति में पड़ा रहता था, आज जब से इनका हाथ हम लोग के सर पे पड़ा है तब से पोस्ता एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है। अब ममता दीदी से विनम्र निवेदन है, मध्यम श्रेणी व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए अलग से एक नोडल ऑफिसर इन्होंने कोविड पीरियड में भी हम लोग के लिए किया था। उनसे रिक्वेस्ट है कि एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो प्रशासनिक समस्याओं का समाधान और समुचित मार्गदर्शन कर सके। पोस्ता का मेवा अस्पताल बहुत साल से बंद पड़ा था, बिल्डिंग खंडहर जैसी हो गई थी। दीदी के निर्देश पर आज ये इतनी सुंदर बिल्डिंग यहाँ खड़ी हो चुकी है जिसमें गरीब मरीजों का खूब लाभ उठा रहे हैं। अब दीदी से निवेदन है कि इसमें आईपीडी भी चालू की जाए ताकि स्थानीय मुठिया मजदूर गरीब लोगों की संपूर्ण चिकित्सा मिल सके और उन्हें इलाज के लिए उधर उधर न भटकना पड़े। दीदी एक बात की अपील करनी है कि अंचल के नागरिकों को, व्यापारियों को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, जो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, उन्होंने बेजा इलीगल पेपर सब इशू करके पार्किंग की यहाँ पर अव्यवस्था सी फैला रखी है। जो भी मर्जी आता है एक ट्रक से 2000 3000 जो मर्जी आता है वो लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जरा, और इसके लिए हमारे कानून मंत्री ने, कानून डिपार्टमेंट ने कंसर्न जितने पुलिस स्टेशन थे वहाँ पर लेटर भी भेज दिया कि ये यहाँ पर पार्किंग ले नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये अनवरत चल रहा है। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एक समस्या मिट जाए। एक बड़ी समस्या हमारे व्यापारियों के सामने है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। बहुत ही जगह बैरिकेड लगाकर इसकी वसूली की जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को रेवेन्यू मिले, खूब मिले। अभी जो इसका कलेक्शन है उससे चौगुना हो, 10 गुना हो, लेकिन उसके लिए हम एक सिटिंग करना चाहते हैं। पहले भी एक बार सिटिंग किया था हमने, सचिव हमारे साथ एक्सेप्ट भी किए थे कि ठीक है ये प्रपोजल चल सकता है। यदि ये समय हमको विपणन मंत्री दें, कृषि विपणन मंत्री, तो उनके साथ बैठ करके इस समस्या का निदान हो जाए, व्यापारी भी अच्छी तरीके से काम कर सके और सरकार की रेवेन्यू चौगुनी 10 गुनी बढ़े। मैं तहे दिल से हमारे मेयर का आभार व्यक्त करता हूं, जो ये छोटा ही है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। आभार व्यक्त करता हूं जो इतना सुंदर रोड पोस्ता का चंद दिनों के भीतर बनवा करके इस एरिया के वो और सुविधा प्रदान की। इसलिए मेयर का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक हमारे व्यापारी का 72 लाख रुपया बैंक से फ्रॉड हो गया। कमिश्नर साहब की इनिशिएटिव से 24 क्रिमिनल पकड़े गए, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि अभी तक एक नया पैसा रिकवरी नहीं हुआ। एक बड़ी समस्या दे दिया। अब मैं जो दीदी के आगमन पर एक चंद लाइन बोला करता हूं, दीदी की इजाजत से वो चंद लाइन बोल करके अपने वक्तव्य को यहीं विराम दे दूंगा। निजे लिखे ची दीदी जुन्ने कि दीदी हम लोग के लिए क्या है। अभी तो बताया कि इनका आशीर्वाद नहीं रहता तो पोस्ट आज ये 50वां स्वर्ण जयंती नहीं मना सकता था। तो मैंने दीदी के लिए चंद लाइनें लिखी हैं। तुम गंगा की अविरल धारा हो, तुम गंगा की अविरल धारा हो, अर्श का सितारा हो और सितारों में भी तुम ध्रुव तारा हो। घर के तुम धरोहर हो, डूबते का किनारा हो, हर किसी का सहारा हो, तुम जियो हजारों साल, ये हम सब का नारा हो। शब्दों का अलंकार हो, जितनी भी उपमा दें उसका तुम सार हो। हमारे घर में लोग इसरो की बात करते हैं, लोग इसरो की बात करते हैं, हमारे घर में तो पहले से चांद हो। हर किसी परीक्षण का अनुसंधान हो, सागर की मोती हो, मंदिर की ज्योति हो, हर किसी के दर्द में विचलित होती हो, इसी में जागती हो जब दुनिया सोती हो। दीदी शब्दों में मेरे लिए क्या हो ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता। स्पेशली मैं अपने लिए बोल सकता हूं कि दीदी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया वो शब्दों में पिरो नहीं सकता मैं। इसीलिए तुम हमारी प्यारी सी दीदी सी, हमारी बहना हो, दीदी हो, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं,
उसका सूत्रपात केवल एक उसका नाम है श्रीमती ममता बनर्जी। धन्यवाद। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা দীর্ঘদিন থেকে প্রায় 1 বছর থেকে অধীর আগ্রহী, যার জন্য আপনারা অপেক্ষা করেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। উপস্থিত সতীনাথ ভাই, বিশ্বনাথ আগরওয়াল ভাই, নিরাজ জালান, সতীশ গোয়েল, মনোজ জালান, অদিতি আগরওয়াল, গৌতম গুপ্ত, গোপাল সাহা, পবন কুমার মোদি, দীপক রঞ্জন কাপুরিয়া, বিপুল সাহা, শৈবাল নন্দী, পঙ্কজ আগরওয়াল, সুভাষিস শ্রীমানি, পিঙ্কি সেঠ, রাকেশ আগরওয়াল, প্রণব হালদার, সুমিত আগরওয়াল, কল্যাণ ভৌমিক সহ আমার যে সহসাথী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শশী পাজা, সুজিত বোস, বেচারাম মান্না, আমাদের পুলিশ কমিশনার বিনীত এবং লোকাল আইসি থেকে শুরু করে ডিসিরা, আমার এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মলয় ঘটক আইনমন্ত্রী, ফিরহাদ হাকিম কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং আরবান ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার, আমাদের এখানে সাধনা বড় কমিটির চেয়ারম্যান সহ আরও অনেকে সামনের দিকে বসে আছেন, যারা অনেকেই আমার পরিচিত। আমি প্রতি বছরই এখানে আসি। আমি যারা ঢাক বাজাচ্ছিলেন মেয়েরা, তাদের সহ সকল পল্লীর, সকল জেলার পোস্টার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সকলকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং শুভকামনা। এর আগে দুর্গাপুজো হয়ে গেছে, বিজয়া হয়ে গেছে, नवरात्रि होए गए। आप लोगों को शुभकामना है। फिर हमारा जगद्धात्री पूजा होने का बाद छठ पूजा है, गंगा माई की पूजा है, जो 19-20 में घाट में पूजा होगा। हमारा सरकार इसके लिए 2 दिन छुट्टी भी दिया। इसका बाद हमारा बिजनेस बंगाल समिट है, उसका बाद फिल्म फेस्टिवल होगा, उसका बाद गुरु नानक जी आएगा, कभी ईद आएगा, कभी बड़ा दिन आएगा, कभी जैन जी का पर्व आएगा, महावीर जैन, कभी बिरसा मुंडा आएगा, कभी लोकनाथ आएगा, कभी तारकनाथ आएगा, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आएगा, कभी गायत्री देवी का पूजा होगा, कभी संतोषी माता होता है। ये सभी माँ का रूप है। कोई माँ को पुकारता है माँ दुर्गा कह के, अंबिका कह के, जगद्धात्री माता कह के, रक्षा काली कह के, श्यामा काली कह के, चामुंडा काली कह के, छिन्नमस्ता, जगद्धात्री, भद्रकाली, बगलामुखी माँ, धूमावती माँ, कामाख्या माँ, ऐसे पूरा सब देव देवी माँ का कोई कोई रूप में आ जाता है। जैसे हमारा महादेव ओम नमः शिवाय हम लोग कहते हैं, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जब मैं रेल मिनिस्टर में थे, मैं अजमेर से पुष्कर तक रेल लाइन बना दिया था। मेरे को पुष्कर जाने का मौका भी मिला। उधर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और गायत्री देवी का मंदिर भी है।
मेरे को बहुत सारी जगह जाने मौका मिला। अब देखा दक्षिणेश्वर में हम लोगों ने कितना डेवलप कर दिया। दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक हो गया। अभी काली मंदिर में हम बना रहे हैं। हमारा सतीपीठ बंगाल में 51 सतीपीठ से 5 तो हमारा बीरभूम में ही है। माँ काली है इधर में, उधर में कंकाली ताला है, उधर में बक्रेश्वर नौलाटेश्वरी है, उधर में फुलेश्वरी है, फुल्लोरा है, पाथरचापुरी भी है। हमारा मंदिर मस्जिद भी है बहुत सारे। भोलेनाथ का मंदिर भी हम बना दिया अच्छा से, तारापीठ भी बना दिया, चाकला भी बन रहा है, अनुकूल ठाकुर का मंदिर के लिए भी हम दिया है। ऐसे बहुत सारे काम। दीघा में जगन्नाथ मंदिर हो रहा है। जैसा जगन्नाथ मंदिर का हाइट है वही हाइट में हम करने जा रहे हैं। आप लोग खुश होंगे जब जाएंगे तो। अब तो अब अप्रैल का माफिक अंदर में हो जाएगा। अभी तो हम इस्कॉन में जाते हैं, कभी पुरी जाते हैं जगन्नाथ को सेवा करने के लिए। ये जो जगद्धात्री माँ होता है, इनको हम कहते हैं जगत माता। जगत का माता होता है जगद्धात्री। मंत्र सब एक ही है। जो माँ दुर्गा को कहते हैं, जो माँ काली को कहते हैं, जो सब देव देवी को कहते हैं। ओम नमो शिवाय नमो को कहते हैं, कृष्णाय को कहते हैं, गणपति बाप्पा मौर्या के करते हैं। जब सूर्य स्नान होगा गंगा माई की का धरती में, छठ पूजा का घाट में भी हम जाते हैं। हमारा हर लोग जाते हैं, उसका पूरा इंतजाम भी हम लोग अच्छा से करते हैं। तो उसमें जाके हम कहते हैं सूर्यों का प्रणाम, सूरज के प्रणाम। ओम जवा कुसुम शंकाशं काश्यप्यंग महादुतिम धनतोरिंग सर्व पाप घनोत पुनत होस्मी दिवाकरम। हम घाट की पूजा करते हैं, गंगा माई की पूजा करते हैं। हम जब जगद्धात्री माँ को पास आते हैं, हम कहते हैं दया रूपे दया दृश्य दयाद्य दुख हारिणी सर्वसार्थी रुके देवी जगद्धात्री नमस्तुते। ओं सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री साहसधा नमस्तुते। ओं काली काली महाकाली काली के कालो रात्रि के धर्मात्मे मोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते। ओं महादेवं महात्तानं महायोगी महेश्वरम महापापहरं देवं मकराय नमो नमो। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय ग ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। हम मातृदेवता पितृदेवता को हम नमस्ते कहते हैं, हम नमस्कार कहते हैं, हम बहुत बहुत हमारा श्रद्धा को निवेदन करते हैं। मेरे को पोस्ता बाजार का बारे में प्रॉब्लम पहले ही हमारा कान में आए थे। तब मैंने आयन मिनिस्टर को पूछा ये जगह कहाँ है, किसका है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का जगह है। कलकत्ता पोर्ट से कोई पर्ची लेके आता है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। अभी कोर्ट में केस पड़ा है। अगर ऐसा कोई कार पार्किंग बनाया
इलीगल। अगर ऐसा कोई जायगा बनाया, वॉल दे दिया, तो हम पुलिस को बोलेंगे, कानून मंत्री का साथ बात करके और पोस्ता कमेटी का साथ बात करके, एक दिन बात करके उसको इलीगल डिक्लेयर कर दो। और जो इलीगल करते हैं उसको लीगली कोई बात नहीं है। हम तो एग्रो मार्केटिंग मार्केट करने चाहता है। कितना लोग पोस्ता बाजार में बाजार करते हैं। मैंने कोविड का टाइम में आए थे, जब कोई लोग दुकान नहीं खुलते थे, खबर का नहीं मिलते थे, खबर सब्जी, मैं आके पोस्ता बाजार में, विश्वनाथ अग्रवाल तब आ गया था, मैं सीपी को लेके आया था, डीसी को लेके, मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों ने सैनिटाइज करके सब्जी बाजार खुल दो, आपका बड़ा बाजार खुल दो। ये इंटरनेशनली ये हमारा ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर ये नहीं चालू रहेगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा। कोई दलाल, कोई माफिया अगर किसी का नाम पे रुपया कलेक्शन करे और आप लोगों को दिक्कत करे, और जिसको अधिकार मिला है स्टेट गवर्नमेंट से, अभी भी कोर्ट केस में पेंडिंग है, लेकिन तब भी मालिकाना स्टेट गवर्नमेंट का है हाथ में। और हम बॉबी को वो रिक्वेस्ट करेंगे, फिराद हाकिम को, कि आप जाएगा बैठ के एक साथ में, पुलिस को भी ले लो, पोस्ता बाजार व्यवसायी समिति को भी ले लो, हमारे मजदूर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको भी ले लो, सुदीप दा को भी ले लो, शशि को भी ले लो, लेके एक कमेटी करके आपस में बैठ के अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो आप उसको एक्विजिशन कर लो कि ये किसी का जायगा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जायगा है। फैसला तो नहीं हुआ, पार्किंग सेंटर दे दिया, एक पर्ची लेके चला है, वो पर्ची फेक है कि नहीं है उसका मालूम क्या है? हमारा रिकॉर्ड में तो नहीं है। रसीद काट के कर देता है, वो रसीद का वैल्यू क्या है? रसीद भी नहीं देता, रुपया ले लेता है। ये सब आपको पता है। जो आप लोग इससे खरीद रहता है वो आगामी दिन आपको उधर से हटा जाएगा, इलीगली हटा देंगे कानून का मुताबिक। ऐसा किसी को पैसा मत दो। और बेचारा मान्ना को भी हम कहेंगे, शोभन देव चैटर्जी का साथ एक मीटिंग करके एक एग्रो मार्केटिंग सेंटर ये पोस्ता बाजार एरिया में जो सेफ्टी का साथ, सिक्योरिटी का साथ एक करना चाहिए। बड़ा बाजार में तो पहले पुलिस स्टेशन ही नहीं था, ये तो मैंने आके कर दिया। अभी भी हम कहेंगे कि जो लोग जुल्म करते हैं, चाहे जो भी हो, उसको खिलाफ में एक्शन लेना, और जो रसीद भी नहीं देता है, पैसा लेता है, वो लोगों को अरेस्ट करना आपको काम है। एक काम करा के आप देखिए, जैसे इलीगल लैंड जो जमीन गवर्नमेंट का ले लेता है, ये ठीक नहीं है। कोई कोई जगह में कोई कोई लैंड ऑफिसर भी ऐसा दे देता है पर्ची, लेकिन पहले देख लो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि नहीं है। हम एक कमेटी आज बना दिया, एक एक्स चीफ जस्टिस को लेके कमेटी बनाएंगे कि गवर्नमेंट का वेस्टेड लैंड लेके कोई भी 2 नंबरी करके बेच देता है और लोगों का पता नहीं रहता है, लोगों ने बेचारा फंस जाता है, उसमें घर बाड़ी बनाते हैं। पता कर लीजिए, हमारा लैंड रिकॉर्ड पता कर लीजिए। अगर लैंड रिकॉर्ड, पोर्टल रिकॉर्ड, किसी का 2 नंबरी कागज पे विश्वास मत करो। म्यूटेशन होने का पहले आप लैंड रिकॉर्ड्स के ठीक से तैयार करो। अभी लैंड रिकॉर्ड भी हम बनाया, रजिस्ट्रेशन भी बनाया, लैंड बैंक भी बनाया, लैंड पॉलिसी भी बनाया। इसी के लिए हम नहीं चाहते कोई इंसान
कोई दलाली के लिए आपका दिक्कत में पड़े। मैं विश्वनाथ अग्रवाल को कहेंगे कि आप तो कविता का पूरा छंदो मिला देता है और छंदो आपका अंदर में है, तो मैं आपको कहेंगे वो हमारा लिए मत कहिए, हम तो एक इंसान हूं, ये जनता के लिए कहिए, इंसान के लिए कहिए। हम हमारा लिए कुछ नहीं बनाते हैं, हमारा पार्टी के लिए कुछ नहीं बनाते हैं कि ये माँ माटी मानुष का है। हम कहेंगे हमारे लिए सूरज है, चाँद है, तारा है, हर कुछ इंसान है। हमारे लिए रोशनी है, हमारे लिए सुबह है, हमारा लिए संध्या है, सब ही हमारा इंसान का है। हमारा अगर नदी का लहरी है, सागर का लहरी है, तो लहरी ये आपका है, आम जनता का है। हमारा लिए अगर गिनारी है तो ये गिनारी भी आप लोगों का ही है। मैं पूरा जितना भी हमारा नेचुरल थिंग्स है, मैं सब आपको इंसान को बांटते हैं, इंसान को डेडिकेटेड करते हैं कि इंसान तो इसको लिए बचेंगे, हम इसको लेके क्या करेंगे। हमारा तो एक घर जिसमें कुछ रखने का भी जगह नहीं है, हमको रखने का जगह है लेकिन और कुछ रखने का जगह नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज चाहिए कि हमारा जनता अच्छा रहे, हमारा इंसान अच्छा रहे और हमारा मानविक प्राण अच्छा रहे। बंगाल मस्ट लीड इंडिया, इसको हम विश्वास करते हैं। हमारा पुलिसकर्मी लोग इसको परिवार से लेके पूजा में भी टाइम नहीं दे पाता, कोई फेस्टिवल में नहीं, पूरा तरह लॉ एंड ऑर्डर देखता है। अगर एक गलती हो जाता तो कितना बड़ा बड़ा बात इसको खिलाफ में कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, कल भी हमारा एक कांस्टेबल एक गाड़ी का टकराने से बालूरघाट का मर गया। ऐसे राजारहाट में भी हुआ। क्यों नहीं ड्राइवर लोग देखते हैं कि हमारा पास एक कांस्टेबल ड्यूटी करते हैं, वो भी इंसान है, हम उसको मार के चला जाएगा, क्या उसके बाद सीसीटीवी में फोटो नहीं आएगा। हम तो अगर एक्सीडेंट भी होता है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर देता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्सीडेंट करके मार के सोचता है आदमी एक्सीडेंट करके बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी उसका परिवार का साथ कल दुख के बात किया, दुख में उसको पिताजी का साथ बात किया और हमारा सामान्य जो होता है हम 5 लाख रुपया उसको परिवार को भेज दिया और उसको चीफ वाइफ के लिए 2 लाख रुपया हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी दे रहा है। प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम गौतम चैनल एंड ऑल्सो वी आर गिविंग 1 स्पेशल होमगार्ड सर्विस टू देयर फैमिली। जब लोगों का दुख होता है सबको मदद करना हमारा काम होता है। इंसान को मदद करो तो देवता को मदद करना होता है। इंसान को प्यार दो तो देवता को प्यार करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? हमारा मानविकता बढ़े। हम पूजा क्यों करते हैं? हमारा दिल पवित्र रहे। हम पूजा पाठ यज्ञ क्यों करते हैं? अपन के लिए नहीं, अपन का नाम बढ़ाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम एक सपना देखता है कि हमारा देवता अच्छा रहे तो हमारा परिवार को हम मंगल मांगते हैं, हमारा परिवार को शुभकामना मांगते हैं, हमारा बिजनेस का शुभकामना मांगते हैं। और हमारा जो पश्चिम बंगाल का परिवार है, जो इंडिया का परिवार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी को मुसलमान हो क्रिश्चियानी, पंजाब सिंधु गुजरात हो मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, हम सबको सब धर्म को लिए सम्मान करते हैं, सब जाति के लिए सम्मान करते हैं। हमारा पास कोई ABCD नहीं होता है। इलेक्शन का टाइम में
एक ABCD नया फॉर्मूला बांधते हैं, इलेक्शन का बाद और एक ABCD नया फॉर्मूला बांधते हैं। हम वो नहीं करते हैं। हम जिंदगी भर सुबह में जो करते हैं हम रात में भी वही करते हैं। हम सुबह में जो सोचता है हम दोपहर में वही सोचता है। हम सुबह में जो सोचता है वो हम रात में सोचता है। और हमारा कान में कोई न्यूज आ गया कि इधर में दिक्कत होता है तो हम खुद उसको टेकअप करते हैं। इसी के लिए कि हमको जो मिला आज काम करने का मौका, मैं भी 34 साल संघर्ष किया, आज भी करते हैं। पहले CPM का साथ संघर्ष करने पड़ते थे और अभी तो दिल्ली का जो पार्टी है उसका साथ संघर्ष करने पड़ते हैं। सब रुपया बंद, गरीबों को रुपया बंद, मजदूर का रुपया बंद। अरे एक मजदूर अगर डाला ना बेचे, डाला ना धरे तो थोड़ा ही बिजनेस होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। काम करते हैं कौन? मजदूर लोग। लेकिन बड़ा बिल्डिंग जब बन जाता है तब मजदूर लोगों को कोई ख्याल नहीं रखते हैं। हम रखते हैं। जो लोग सब्जी बेचता है कितना दूर दूर से आके, उसको ख्याल भी रखना हमारा कर्तव्य है। आपका पोस्ता बाजार में भी जितना वर्कर है इसको एक नाम आप रजिस्टर कीजिए। अगर इसका कोई दुख हो, कोई ट्रीटमेंट का बारे में हो, कोई लक्ष्मी भंडार का बारे में हो, ये लोग स्वास्थ्य साथी मिलेगा, इसको ट्रीटमेंट बिना पैसा में हो जाएगा। अभी तो कर दिया हमने, लक्ष्मी भंडार में 1000 रुपया मिलेगा, स्कॉलरशिप में मिलेगा। हिंदी यूनिवर्सिटी भी कर दिया, उर्दू यूनिवर्सिटी भी कर दिया, जॉइन यूनिवर्सिटी भी हो रहा है। सेंट जेवियर्स भी कितना हो गया है, बहुत सारे क्रिश्चियन को भी हो गया है। बहुत जगह में हम उर्दू यूनिवर्सिटी कर दिया, उर्दू लैंग्वेज को स्वीकृति दिया है, सिख लैंग्वेज को दिया है, राजवंश को दिया है, पहाड़ियों को दिया है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, ऑलचिकी है, हम स्वीकृति दिया है। जिधर में 10% का ज्यादा हो उसको स्कूल है, उसको यूनिवर्सिटी है, उसको कॉलेज है। और भी आने वाला दिन हम बनाएंगे। राजवंशी भाषा को भी हम स्वीकृति दिया है। ऐसे बहुत सारे हैं, कितना बताऊंगी आपको। इसी के लिए एक साथ में रहिए, किसी को बात ना सुनिए। इलेक्शन का टाइम में दंगा फसाद करने के लिए और हम काम करते हैं और वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट का रुपया का टाका अगर मजदूर को दे देते तो हमारे 100 दिन का काम का रुपया के लिए ये मजदूर को रोने नहीं पड़ता। जितना भी रुपया है एडवर्टाइजमेंट सब नाम पे। हम कभी ऐसा नहीं देखा। हमारा पिताजी माताजी का देहांत होने का बाद कभी लोग मेरे को बताया कि आप माताजी का लिए एक इंस्टीट्यूट करें, आपका पिताजी का लिए कुछ करें। मैं बोला वो लोग नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते हैं, हम ऐसा नहीं पसंद करते हैं। आम जनता जिसको याद रखेगा वही सबसे बड़ा याद रखेगा। अभी तो सब गेरुआ बना दिया। We are proud of your Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। अरे वो तो छोड़ दो, मायावती को मैं देखा था अपना नाम पे एक स्टैचू बनाया था, लेकिन और अभी नहीं सुना कि किसी को नाम पे ऐसा होता है। अभी तो हर बात पे नमस्ते का नाम पे होता है। जनता को नमस्ते नहीं, एक कभी नहीं चल सकता है। देश का नाम पे करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। कोई गुजरात को लीडर को नाम पे करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जो देश का नेता है, यूपी का करो, बिहार को करो, राजस्थान को करो, साउथ इंडिया को करो,
जो भी जगह है करो। ये क्या है? ये क्या चीज है? वो खाने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज। दिखाने से कभी कभी फायदा मिलता है, लेकिन परमानेंट फायदा नहीं मिलता है। कुर्सी तो आने के लिए है, जाने के लिए भी है। ये जनता का दिल में है। मैं तो माँ का पास और देव देवता पास यही विनती करेंगे कि हमारा देश में शांति रहे, हमारा विश्व भर शांति रहे, हमारा कोई डिविजन ना हो, कोई डिवाइड एंड रूल ना हो। हर धर्म, हर फेस्टिवल, सबको करने दीजिए। और जो भी काम हो रहा है, जो होना चाहिए था, हमारा बंगाल में तो हम कर लेता है, हमको तो सब बंद कर दिया। लेकिन देश में भी नहीं हो रहा है, खाली देश बेचने जा रहा है। मेरे को पास इंफॉर्मेशन है, मोर देन 70,000 बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और देश छोड़ के चला गया। ये तो हमारा देश में इन्वेस्ट कर सकते थे, ये रुपया बाहर में जा रहा है। तो इसी के लिए हम चाहेंगे कि लेट द गुड सेंस प्रिवेल्स, लेट द गुड सेंस प्रिवेल्स। And I am proud to say, Bengal will lead the country once. Again, when the country is having any problem, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. गोखले को कहना था जब आज़ादी का लड़ाई हुआ था, हम भी कहते हैं अंतिम में, जय माँ जगधात्री का जय, जय बांग्ला का जय, वंदे मातरम का जय, जय हिंद का जय, जय हमारा देशो मातृका का जय। आप लोग सब अच्छा रहे, सुंदर रहे। हम थोड़ा ज़्यादा बोला है, प्लीज़ क्षमा कीजिए। अच्छा रहिए, सुंदर रहिए। हम किसी को खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि देश का जनता जनता नहीं है, खाली एक ही जनता है। वो हम नहीं मान्यता देना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सबको लिए, हम जो भी करें हम बंटवारा करके खाएंगे। हम एक साथ में आधा रोटी रहेगा, आधा रोटी बंटवारा करके खाएंगे। हम अकेला सब नहीं खाएंगे, ये हमारा बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय माँ जगधात्री जय, जय छठ पूजा का जय। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাপোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে